حرکت پر شاہین کی نظر رکھنے والے، اور ان کے جو جذبات ہیں ان کا احساس میری رگ رگ اور لولو میں ہے، کیونکہ میرے رب کا مجھ پر اتنا بڑا فضل ہے اور میرے قائد کی نگاہ دور اندیشی نے مجھے 10 سال ان کے ساتھ اسی طرح جیکٹیں پہنائے اور اسی طرح پنڈال میں رکھا۔ اور میں آپ کے سامنے اپنے کارکنان، میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں، قائدین تو بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ میں وہاں سے یہاں آیا ہوں، میں وہاں سے یہاں آیا ہوں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہاں بیٹھ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ ذہنوں میں کیا سوچ رہے ہیں، اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کے احساسات کیا ہیں۔ اس رب لم یزل کی فضل سے آپ کے احساسات مجروح نہیں ہوں گے، آپ کے جذبات مجروح نہیں ہوں گے، بلکہ ایسے کھلیں گے کہ ان کی خوشبو انشاءاللہ پاکستان کے ہر ایوان تک جائے گی۔ کیونکہ میں کس بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے قائد محترم انہی کی نقل کی ہوئی بات جو آپ سناتے تھے، فرماتے تھے جب ایران فتح ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب مال غنیمت مدینہ منورہ کی جانب روانہ کیا تو اس کے ساتھ ایک رکا بھی بھیجا۔ جب مال غنیمت پہنچا تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ خط بھی کھولا گیا۔ جب وہ خط پڑھا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب ایران فتح ہوا ہے اس کے دوران جو مال غنیمت، اتنا قیمتی مال غنیمت ہمارے سپاہیوں کو اس مقام سے ملا ہے جہاں سے اللہ کے علاوہ انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، اس مقام سے ملا ہے جہاں اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ اتنی بڑی دیانت دیکھ کر سن کر حضرت عمر رونے لگے، پیچھے کندھوں پر مولا کائنات کھڑے تھے۔ فرمایا عمر روتا کیوں ہے، روتا کیوں ہے، تیری رعایا بددیانت کیسے ہو سکتی ہے، تو جو بددیانت نہیں۔ تو ہمارے قائد فرماتے تھے پرنالے سے پانی صاف آئے تو نیچے اترتا ہے۔ ہمارے قائد نے جو پرنالہ چلایا وہ عشق رسول کا پرنالہ تھا۔ اب بات سنیں جو غور والی ہے، مجھے وہ لوگ، وہ کارکنان آ کے ملے جو ہمارے امیر المجاہدین کی حیات میں کہتے تھے کہ ہم مال ہمارا حاضر ہے، ہم جان نہیں دے سکتے، کمزور ہیں، بزدل ہیں۔ آپ کی حیات مبارکہ کے ظاہری مثال کے بعد، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے مجھے یہ یقین دلایا کہ سعد بھائی ہم بابا جی کے ہوتے مال لے کر آتے تھے، باخدا آپ جان بھی لے کر آئے ہیں۔ پہلے مال لے کر آتے تھے، اب جان لے کر آئے ہیں، اور جو جان لے کر آتے تھے انہوں نے اپنے دودھ پیتے بچے میری گود میں بٹھائے، انہوں نے کہا یہ حضرت آپ کے سپرد ہوئے، اور جو حضرت کے ہوتے دودھ پیتے بچے لے کر آتے تھے وہ اپنے ماں باپ اور اپنے گھر والوں کا ساتھ لے کر آئے، انہوں نے کہا حضور یہ بھی حاضر ہیں۔ تو میں نے امیر المجاہدین کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہا کہ حضور جو آپ نے ان کو عشق رسول کا جام پلایا ہے یہ بھولے نہیں ہیں، بلکہ اس میں اور مست ہو گئے ہیں، اور اس میں اور مستی کے ساتھ آپ کی جانب، آپ کے مشن کی جانب چل پڑے ہیں۔ تو میں اور کوئی یہ سمجھے کہ ہم خاموش رہیں گے، کوئی اپنی کارستانیاں کرتا رہے گا، ہم وعدے کے پابند ضرور ہیں، اور وہ بھی 17 کے دن تک، 17 کے سورج چڑھنے تک ہم وعدے کے پابند ہیں، کیونکہ اس پابندی کا تو ہم اعلان کر چکے۔ اب تھی دوسری بات کہ ہمارے قائد
कायद फरमाते थे एक जंग छिड़ चुकी है और ये जंग है नामूस रिसालत की, और इसमें जो पीछे रहेगा वो हुजूर से गद्दारी करेगा। तो ये भी हमारा ऐलान है कि उस वादे को मद्देनजर रखने वालों जिनसे हमने वादा किया है उनको हम ये बात कहते हैं कि वादा भी हमें याद है और अपना अहद भी याद है जो मीनारे पाकिस्तान में हमने अपने कायद के हाथ पर हाथ रख के कहा है कि हुजूर मर तो सकते हैं, हुजूर की नामूस रिसालत पर कोई मुदानत नहीं इख्तियार कर सकते। ये हमारा आपसे वादा है। अगर किसी को गलत फहमी है तो जैसे हमारे कायद सुनाते थे कि आले बैत अतहार के घर, हुजूर के खानदान के घर, हुजूर के गज़वात ऐसे पढ़ाए जाते थे जैसे सबक पढ़ाया जाता है, कुरान पढ़ा जाता है। हमारे कायद ने हमें बात इसी तरह एक पढ़ाई है, वो है हज़रत इमाम हुसैन का कौल कि जुल्म के खिलाफ जल्दी उठना है, अगर देर करोगे तो कुर्बानी ज्यादा देनी पड़ेगी। हम आपसे ये वादा करते हैं कि 17 से देर नहीं होगी अगर इन्होंने वादा पूरा ना किया, 17 से देर नहीं होगी, क्योंकि हम जुल्म के खिलाफ जल्दी उठने वालों में से हैं। हम जुल्म के खिलाफ, मैं आपसे सुनना चाहता हूं, हम जुल्म के खिलाफ, वो जल्दी कौन सी होगी कि वो 17 की सुबह होगी, 16 की शाम तक आपसे हमारा वादा है। हम आपको वादा याद दिलाना हमारा फर्ज है, हम आपको याद दिलाते रहेंगे, और अगर आपने वादा ना पूरा किया तो फिर हमारी माजी के कुछ राग भी खोल के देख लेना। माजी के कुछ राग खोल के देख लेना कि हम कौन हैं, हम कौन हैं। हमारे पास दावा एक है, वो है हुजूर के इश्क का, उस पर दलील भी एक है, अमीरुल मुजाहिदीन। और ये याद रखना कि अमीरुल मुजाहिदीन ने हमें हुजूर की मोहब्बत के वो जाम पिलाए हैं कि ये नशा मरने के बाद भी नहीं उतरेगा। अभी तो हम जीते हैं, जागते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कौन सी बात हमें डराएगी? ये बात कि हम मर जाएंगे। अब तो मरने का ज्यादा जज्बा पैदा हो गया है कि जल्दी अमीरुल मुजाहिदीन के साथ मिलकर हुजूर की बारगाह में पेश हो जाएंगे। मुस्लिमा के पास जाएं या किसी के मर्जी के पास जाएं, आपके पास 17 तक वक्त है, आप उसके मुताबिक उस सफीर को मुल्क बदर करें। बस जो आपने हमारे से वादा किया है वो वादा पूरा करें। और हमारे एक कारी साहब शेर पढ़ रहे थे, उन्होंने फैजाबाद भी पढ़ा था कि जिन्हें ये तब्दीली की थी ओंदे दिल विच चोर है। इस सारे मंसूबे दे पिछे कोई ते मैं जरा तरमीम ना करना कि जिन्हें ये तब्दीली लियांदी ओंदे दिल विच चोर है। इस सारे मंसूबे दे पिछे कोई हो रहे, ठीक है जी। ते वो तब्दीली 1 करोड़ नौकरियां देंदी हुई, उस सफर जारी करते हुए 50 लाख घर बनाते हुए, कराची के अंदर मार्केटा उजाड़ते हुए, ओ सती कल एक बच्चा साड़ा मारते हुए, वो तब्दीली सफर तय करते अफलाक के मामलात भी आ गई। अफलाक के मामलात किमें आ गई भाई, उन्होंने ज्यादा पता लग गया कि मुतफक्कुन बंदा कट के ला के तो होर बंदा चल देखे, सानू इसना इतराज नहीं, लेकिन असी तब्दीली जो गल कर रहे हैं वो आसमानी मामलात की तब्दीली भी आ गई। कोई गल नहीं, तुसी ये तब्दीली लियांदी, एक तब्दीली हुण तुहाडे वास्ते अवामे पाकिस्तान और शाखाने मुस्तफा लियाणगे। जिन्हां मोढियां ते तुसी सवारी करके आए हो ना, वो मोढे हुण तुहाडियां नायलियां दा ज्यादा बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि वो अनफिट हो गए। वो ज्यादा बाहर नहीं जा सकते हुण मोढे। आना तुसा मुड़ के साडे कोल ही इत्थे अवाम विच, इत्थे पिंड लगना अवाम विच, वोट लैण आने जे ना, अवाम विच आना तुसा, कंपेन करन भी आना, ते उत्थे मैदान लगना, ते उत्थे होना की है कि अवामे पाकिस्तान ने तुहानू दिने तारे विखा देने, फिर तुहानू होर तां शायद लभणी कोई नहीं, एक रोयत नजूम बनानी पैनी कि तुसी दिहाड़ी तारे वेख लैन, और तारे हैं मायरे फल्कियात के मुताबिक 48 किस्म दे, ते तुहाडे कोल 28 बंदियां दी कबीना पूरी नहीं हुई, 48 फिर रिटायर लम्बे पैने तुहानू।
मुशीर दाएं बाएं देखो। तुसी ये सोचो, साढ़े कायद फरमाते सन कि बकरी दे कबाब खाने वाला और खंजीर दे कबाब खाने वाला बराबर नहीं हो सकता। इस गल नूं इसे तरह निस्बत है कि हुजूर दे गुलामां ते नामूस रिसालत वास्ते चलन वाले ते शैल चलाने वाला और हुजूर दी नामूस वास्ते निकलने वाला कभी बराबर नहीं हो सकता। जदों भी हुजूर दी नामूस ते निकलीए की समझिए असी केड़े पासे जाइए कि असी जदों भी निकलीए शैल साढ़े ते, जदों भी निकलीए गोलियां साढ़े ते, जदों भी निकलीए धमकियां सानू ना यारा किसी और पासे मुंह करो। औरों का है पयाम और मेरा पयाम और है, इश्क दर्द मन का तर्ज कलाम और है। साढ़े को किसी किस्म की नरम गल की तवक्को न रखना। हाँ असी तुहाड़ियां जुतियां भी पालिश करांगे। उस सूरत जी साढ़े कायद ने लकीर खिंची कि हुजूर दे गुलाम बन जाओ, हुजूर दे दरबार ते आ जाओ, हुजूर दे दरबार ते आ जाओ। आखो या रसूल अल्लाह तुहाड़ी इज्जत ते कोई दूसरी गल नहीं हो सकती। ए जहान दोवें जहान भी गल को जान, तुहाड़ी इज्जत ते दूसरी गल नहीं हो सकती। ते खान साहब या जड़े भी जिम्मेदार उन्हां दी जुतियां सी अपनी पगड़ियां ते बन के टुरांगे, ये साढ़े वादा। लेकिन हुजूर दी इज्जत मामले तो थले नहीं। हुजूर दे दरबार ते आ जाओ, यही तुहाडे वास्ते साडा पैगाम है आखिरी। ते कारकुनान तुहानू बुलावांगे तो तुसी आओगे, ए तुहाडे नाल वादा रहा। ए शुरा ते ए गल्ले तुसी ना भी आए असां इत्थे ही खड़े होवांगे। ए साडा तुहाडे नाल वादा रहा, जे तुसी आओगे तो मालिक कबूल कर लैणगे। उन्हें अपनी इज्जत का काम लेना, साढ़े कायद फरमाते सन वो कुत्ते को भी अपनी इज्जत का काम ले, अपने हबीब की इज्जत का काम ले लेंगे। वो मालिक उन्होंने तदबीर बहुत डाड़ियां, उन्होंने साढ़े कायद के जनाजे को काम लिया जोड़ा असी सोच भी नहीं सकते। उन्होंने जाने ओ, लेकिन साड़ी ये जान है हुजूर दी नामूस के कुर्बान है। ते साढ़े जज्बात उस तरह बल्कि उस तो वध गए। क्यों कि असा हुण मदद उतरती वेख ली, इधर तसव्वुर करते हैं उधर मालिक पूरी कर देते हैं, इधर सोचते हैं उधर मालिक पूरी कर देते हैं। ते जड़ियां सख्तियां जो सख्ती है मंजिल को सामान सफर समझे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी वही जमात है जड़ी सख्ती है मंजिल को सामान सफर समझती। ये बड़िया बड़िया सख्तियां कट के आई, ये और रात कट के आई जो तुसी 50,000 शैल सुट रहे सो और अल्लाह की मदद असी अपनी अखा ना उतरते देख रहे सी। फिर सानू ये यकीन है कि अल्लाह सानू बेआसरा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि असि उससे हबीब की इज्जत से पैरा दे रहे हैं। ते मौत वो तो आनी एक दिन आनी, ते अल्लाह करे उस शान नाल आवे जिस शान नाल अमीरुल मुजाहिदीन नु आई, और उससे लैण चाहे उससे लैण च असी खड़े होइए जिस लैण च अमीरुल मुजाहिदीन सानू खड़ा करके गए। और वक्त शेखुल हदीस सारे वास्ते इजाद बड़े 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 होने, कोई किस तरह दुनिया तो गया होना, कोई किस तरह दुनिया तो गया होना, और अपनी आखिरी तकरीर हुजूर दी नामूस वास्ते फैजाबाद पुल ते करके गया। और इस जिस तरह सहाबा कराम को हुजूर ने दीन की तरफ बुलाया थे और तमाम कबीले तमाम रिश्ते छड़ के दीन की तरफ मायल हुए ना, इसी तरह नामूसे रिसालत वास्ते मेरे कायद को अल्लाह ताला ने आवाज़ दी सी कि जो कोई किसी कबील चोई सी, जदों भी मेरे कायद ने आवाज़ दी सारा कुछ छड़ के हुजूर दी नामूस के झंडे के थले जमा हो गए और पूरी कौम ने एक नारा दे देता कि मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन,